Today's first topic, the difference between unicellular and multicellular. I hope children you are preparing running notes also in one sentences because this revision lectures are especially for the multiple choice type of questions, right? So I'm going to discuss in the differentiated form. You can also note down the same point and you can also write in this way or children you can write in a one sentences, okay? Okay, so some children asked me that, ma'am, can you please explain the meaning of cellula e cellula? So that I'll explain first. Cellula e cellula. क्या होता है student? Cellula e cellula means it means the all new cells arises from, they form from pre-existing cells. Okay, pre-existing cells मतलब क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें जो न्यू सेल्स बनते हैं, okay, they form from the older cells. For example, here is the cell, okay, it divides to form two cells. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सेल मतलब ऑलरेडी ये एक सेल होगी और जो न्यूली सेल बनी है that will be identical to the parent. Okay, so one cell it divides, okay, it divides to form two cells, right? So the one cell give rise to two cells. Now here the one cell is more than the previous number, right? So this new cell is always formed from pre-existing cell. This is the meaning of cellula e cellula. All right. Now let's discuss difference between unicellular and multicellular organism once again. So children, unicellular means what? Its name indicate. Uni means single. Okay, and cell means cell itself. So these are the unicellular organism. They have the single cell as the organism itself. Okay, and here in multicellular, multi stands for what? Many. The organism is made up of many cells. Okay, organism is made up of many cells, not a single cell. So of course, as they are unicellular, right children, so they are smaller in size. Okay, as they're unicellular, the single cell is the organism itself. So of course they are microscopic. We cannot see these organisms with our naked eyes, right? And here they are usually large. How much large they are? So we can see them easily with our naked eyes. But some of these multicellular are very small and require microscope to observe them. For example, Hydra. If we want to look at the structure of Hydra clearly, we need microscope. Okay, because it is very small. No doubt it is multicellular, but we cannot see its structure by our naked eyes, right? But of course, they are multicellular. They are made up of many cells. What is second difference in unicellular? Cell perform all functions. The single cell is able to do all the function important to sustain life of that organism. मतलब nutrients का intake हो, waste material का removal हो, exchange of gases like O2, okay, intake of O2 and release of CO2, movements. So these all activities are performed by that single cell only. But here in a multicellular, the specialized cells are there to perform special activities. So assume ourselves in our body, the various organs are there to perform various activities. For example, our eyes are used to visualize the thing. Our heart is used to pump the blood. And as the blood transport all over the body, the nutrient and oxygen also transferred. Kidneys are there to remove the nitrogenous waste from our body. And reproductive system is there to produce the new ones, right? So
The various specialized cells are arranged in a specific location to perform the specific function. Next difference in unicellular, their lifespan is short. Okay, they have very short lifespan. Well, those which are multicellular, they have longer lifespan, right? Next difference, yes, of course, the cells are microscopic. Whatever the organism is, okay, whether it is unicellular or multicellular, their cells are microscopic. So it is better not to write this difference right here. Instead of this, you can write division of labor. Division of labor performed by single cell. Okay, in unicellular you will write, and in multicellular, the division of labor performed by specialized cell. Various organs performs various functions. Not a single organ or not a single cell perform all the functions, right? Again, what is written? All cells come from the other cells. Okay, in unicellular, of course, the one organism is divided to form new organism. It means the cell division is a kind of reproduction in this organism. इनका सेल डिवीजन ही क्या होता है? इनका प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, ओके, जब ये बाइनरी फिशन से डिवाइड होगा, एक सेल के दो सेल्स बनेंगे, राइट? सो दो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे. सो इस केस में इनका सेल डिवीजन ही क्या हो गया? इनकी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हो गई. बट मल्टीसेलुलर में ऐसा नहीं है. Okay, yes, of course, their new cells are also arises from the pre-existing, but the kind of reproduction in this multicellular organism is either asexually or bisexual means. Okay, how they reproduces? They reproduces either by asexually or sexually. Now, various methods of this asexual reproduction you have in 10th standard in detail. Okay, this also we are going to discuss in detail in 10th standard, that how they reproduces. Okay, so no need to think more about this two topic. We will discuss in next year, right? So these are the basic differences between unicellular and multicellular. So let's go for the next topic, children. Our today's next topic is difference between prokaryotic and eukaryotic organism. So basically, now we are classifying this unicellular organism into two types. This also you can add as a next point there in the differences. So there are two types of unicellular. Some of the unicellular organisms are prokaryotic. How they are? Prokaryotic. And some unicellular organisms are eukaryotic. Eukaryotic. So let's discuss what is the meaning of the prokaryotes and eukaryotes, and we will discuss some more differences among these two categories. So children, I hope the screen is visible to you all. Let's discuss the differences. First, that is pro means what? In prokaryotes, meaning of pro means primitive. You can also note down this point in a one sentence. That is, the pro means what? Primitive. And primitive means what? Older. Okay, so they are the most oldest or मतलब सबसे पहले अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट सेल जो डेवलप हुआ, दैट इज द प्रोकैरियोट. फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स डेवलप हुए. दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट नाउ दिस इज स्किप्ड आउट फ्रॉम योर सिलेबस, सो no problem, we will discuss in short. Okay, so this prokaryotes during the stage of evolution develops into the eukaryotes. Okay, so right now just remember pro means older,
Okay, pro means older. And what is the meaning of karyotes? Karyote means nucleus. It means nucleus. So what is the full meaning of the prokaryote? So prokaryotes are the unicellular organism have primitive type of nucleus. Have primitive type of nucleus. मतलब कैसा? एकदम ओल्डर टाइप ऑफ न्यूक्लियस. जैसे कि देखो, दो टीवी होते हैं ना, एक एकदम ओल्डर टीवी होता है और एकदम न्यू टीवी. क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं? ओल्ड टीवी को आप देखो, एकदम ऐसे बड़ा सा डब्बा होता है, ठीक है, बैक साइड से भी एकदम बड़ा सा होता है, आगे से ऐसा कॉन्केव शेप होता है, राइट, उसका ग्लास. फिर उसमें बहुत सारे फीचर्स अलग अलग होते हैं, उसको मतलब बटन से चैनल चेंज करने पड़ते हैं, राइट. न्यू टीवी से कंपेयर करो उसको, लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन है, राइट. फ्लैट स्क्रीन आती है, उसमें भी स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉइड टीवी है, आप सारे एप्स वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं, राइट. लाइव लेक्चर्स आप वहां पर अटेंड कर सकते हो, लॉट ऑफ फीचर्स वहां पर है. और उसका देखो लेंथ भी कितना कम हो गया है, मतलब फ्लैट आता है. पुराने टीवीज देखो एकदम ऐसे ब्रॉडर वगैरह एकदम, राइट. सो बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है. सो वैसे ही जो आपका ओल्डर न्यूक्लियस है और जो आपका न्यू न्यूक्लियस है, दैट इज द यूकैरियोटिक, ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस हम जिसको बोलते हैं, दैट हैव द मेनी न्यू फीचर्स. तो हम पहले वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर बाकी की चीजें पढ़ेंगे. तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा है मैं आपको बताती हूँ. एक्चुअली वो न्यूक्लियस है ही नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया की सेल है, लेट्स अज्यूम रॉड शेप बैक्टीरिया है, राइट. और इसमें इसका ये साइटोप्लाज्म है. क्या है? साइटोप्लाज्म. अब इस साइटोप्लाज्म में एक डीएनए होता है, ऐसा सर्कुलर शेप, सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होता है, और इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलर डीएनए. या फिर इसका एक एप्रोप्रिएट नेम है न्यूक्लियोइड. चिल्ड्रन नोट डाउन दिस इन वन सेंटेंस पॉइंट. न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब क्या? डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. कैसा होता है? देखो ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, क्या लिखा है देखो. I hope you have written this word, children. Now look at the figure. What is drawn here? Single circular DNA, right? ये जो स्ट्रक्चर है रेड बॉक्स के अंदर, ये न्यूक्लियोइड है. अब ये ऐसा डीएनए है कि इसके आजू बाजू में कोई कवरिंग नहीं है. जैसे कि ये डीएनए बराबर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर, राइट. इस पे कोई ऐसे कवरिंग नहीं है. डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में ये से स्कैटर्ड है, ओपनली फ्लो हो रहा है, ओपनली है. बट अगर हम यूकैरियोट से कंपेयर करते हैं तो यूकैरियोटिक डीएनए देखो कैसे होता है. ये आपकी एक यूकैरियोटिक सेल और इसके अंदर डीएनए होगा, बराबर. बट दिस डीएनए इज लीनियर. कैसा है? लीनियर, सर्कुलर नहीं है, लीनियर है. इसके दोनों एंड्स ओपन है. दूसरी बात, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसको एक एनवेलप है, राइट. और इस एनवेलप के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस भी है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म अलग, ओके. बाहर वाला ये साइटोप्लाज्म जो मैं ग्रीन डॉट से बता रही हूँ, ये तो अलग हो गया. बट न्यूक्लियस जो एक्चुअल में है उसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म है और फिर उसके अंदर डीएनए है. सो ये है मोर कॉम्प्लेक्स, दैट इज यूकैरियोटिक डीएनए. और ये है मोर सिंपल, दैट इज प्रोकैरियोटिक डीएनए. सो प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा है? सिंगल सर्कुलर and it is freely scattered in the cytoplasm of the prokaryotic cell. But in eukaryotic cell, the DNA is surrounded by envelope. ये जो है ये envelope है. This is called nuclear membrane. बराबर. So structure मैंने आपको बता दिया है कि difference कैसे होता है. अब इसको हम words के form में पढ़ेंगे, right? So now look at the first point in a prokaryote. What is this? डीएनए. कैसा है इसका डीएनए? देखो क्या लिखा है. इट इज नेक्ड, ओके, ओपन है. जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल सेल एंड इन दैट डीएनए इज डायरेक्टली freely scattered in the cytoplasm. It is not covered by envelope, right? But
in eukaryote, DNA is bound by protein. It is bound to protein. कैसा? अब देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इस तरीके से क्या होते हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. लिसन केयरफुली चिल्ड्रन. 8 हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए ऐसे वाइंडेड रहता है. ये एक वाइंड पीछे गया, पीछे से बाहर आया, ये सेकंड वाइंड. तो हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऐसे डीएनए क्या रहता है? वाइंडेड. समझो ये हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर ये डीएनए ऐसे वाइंड है. इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इन यूकैरियोट्स. सेकेंड पॉइंट, डीएनए इज सर्कुलर. जैसे मैंने बताया कि इसे सर्कुलर है, ओके, लाइक दिस. जॉइंट है, दोनों एंड सर्कुलर है. बट डीएनए कैसा है यूकैरियोट्स का? इट इज लीनियर, लाइक दिस. दोनों एंड्स कैसे? इसके ओपन. इसके एंड्स ओपन नहीं है, क्लोज एंड्स है. दोनों भी डबल स्टैंडर्ड है, बट ये सर्कुलर है, ये लीनियर है. आगे, यूजुअली नो इंट्रॉन्स. यूजुअली इंट्रॉन्स. अभी इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स. इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, जेनेटिक लेवल का टॉपिक है, तो इस पॉइंट को आप फिलहाल के लिए भूल जाओ. Okay, whenever we have extra time, I will explain the whole structure of DNA with nucleotides, with their sequence. Okay, right now these 2 points are enough for you. Now children, next is organelles. अब ये जो प्रोकैरियोट्स है, इनके ऑर्गेनेल्स कैसे होते हैं, या फिर होते हैं या नहीं होते हैं. सो समझो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल. उसमें ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है और साइटोप्लाज्म है. तो बाकी के जो ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, लाइक आरईआर, और कॉमन ले लेते हैं ईआर ले लेते हैं. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ओके, माइटो, क्लोरोप्लास्ट. ये ऐसे ऑर्गेनेल्स बैक्टीरियल सेल में नहीं है. दे डू नॉट पोजेसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. फिर इनमें है क्या? सो इनमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूं मैं रेड कलर से, राइबोसोम्स. सिर्फ राइबोसोम्स ही ऑर्गेनेल है, बाकी के ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है. राइट? सो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से बताए मैंने आपको? ईआर है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, और आपके है वैक्यूल्स. ओके, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है. तो जिनको प्रोटीन का मतलब लिपिड और प्रोटीन का मेम्ब्रेन होता है, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं है. क्या होता है उनमें? सिर्फ राइबोसोम. वो भी कैसा? स्मॉलर, दैट इज 70S. S स्टैंड्स फॉर व्हाट? आगे बताती हूँ. तो वैसे यूकैरियोट्स में बिगर राइबोसोम है, 80S. ओके, राइबोसोम्स दोनों में है, प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है. बट प्रोकैरियोट्स में दूसरे जो ऑर्गेनेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड, लाइक बिगर ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ओके, ईआर, ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं है. अब इसमें न्यूक्लियस तो है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया. प्रोकैरियोट का मतलब ही क्या है? प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जिसमें सिर्फ डीएनए होगा, बाकी न्यूक्लियस तो है ही नहीं. सो सिंपली वी विल राइट no nucleus, or you can write primitive nucleus. And here the well developed nucleus is present in eukaryote, where क्या क्या होता है well developed nucleus में? DNA, okay, linear DNA. फिर उसके आजू बाजू में जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियोप्लाज्म, बराबर. इसके ऊपर लिपिड और प्रोटीन का कोट, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, बराबर. और फिर इसके बाहर से सेल होगी, और फिर बाहर से सेल, और फिर ये साइटोप्लाज्म. ठीक है, सो इस टाइप की जो सेल है इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. नाउ हाउ दे रिप्रोड्यूसेस?
दे रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशन, मतलब प्रोकैरियोट है, एक सेल है, डिवाइड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, 2 न्यू सेल्स बन जाएंगे. ओके, 2 न्यू सेल, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, इट इज अ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्या ये सच में एसिड है? तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फरिक एसिड, इसमें याद रखना, फॉस्फरिक एसिड, राइट, जिसकी वजह से इसका नेचर है, डीएनए का नेचर है एसिडिक. ओके, सो इसका फुल फॉर्म है, राइट. Okay, so how prokaryotes reproduces? By simple process of binary fission. Okay, and how eukaryotic cell divides? It divides by mitosis and meiosis. So this we will discuss at the last of the chapter in a differentiated form. What is mitotic cell division and what is meiotic cell division? Okay, this also we are going to discuss in detail in a comparative form. अब रिप्रोडक्शन के पॉइंट में और एक चीज हमको याद रखनी है, प्रोकैरियोटिक सेल है सिंगल क्रोमोसोम. जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए है, सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट में, सो दैट फॉर्म्स ओनली सिंगल क्रोमोसोम. इससे क्या बनेगा, सिंगल क्रोमोसोम बनेगा. क्रोमोसोम्स क्या है ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में आने वाले टॉपिक्स में. एंड यूकैरियोटिक जो होते हैं दे फॉर्म्स द मेनी क्रोमोसोम्स, many chromosomes and they are in a pair. कैसे होते हैं, पेयर, जैसे कि 23 pairs, sorry 23 pairs of chromosome, बराबर, मतलब ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, ये एक पेयर हो गई. ओके, देन दिस इज वन मोर क्रोमोसोम, दिस इज वन मोर क्रोमोसोम, ये एक पेयर हो गई. ऐसे कितने पेयर्स हमारे सेल में, 23 पेयर्स, मींस टोटल 46. और ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, डिप्लॉयड. डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2n. याद रखो, डिप्लॉयड मींस 2n एंड 2n मतलब इन पेयर्स, इन पेयर्स. ओके, अब यहाँ पर देखो हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब क्या, सिंपल उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, हैप्लॉइड मतलब हाफ, बराबर, हाफ. सो 2n का हाफ मतलब क्या, सिंपल है, 2n का हाफ मतलब क्या, n. 2n का हाफ मतलब n, मतलब क्रोमोसोम पेयर्स में नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड. हैप्लॉइड मीन्स सिंगल क्रोमोसोम, डिप्लॉयड मीन्स इन अ पेयर, मतलब 2n, 2 क्रोमोसोम्स. अब साइज देखते हैं. Prokaryotic cell size is very smaller, approximately 1 to 5 micrometer in a diameter. कितना हो सकता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर. अब माइक्रोमीटर का यूनिट अगर हम देखते हैं, सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर. इतना स्मॉल है, मतलब 0.001234561 इतना मीटर smaller. Okay, so this is the conversation, that is, okay, just a minute, micrometer minus 6 nanometer minus 9. Okay, right, so this is the conversion between micrometer and nanometer. So this much they are small. और आगे आते हैं, they are larger in size. कितने larger, approximately 10 to 100 माइक्रोमीटर. ओके, और मैंने बताया दैट इज 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर. सो यू कैन कन्वर्ट इट, राइट. सो दिस मच they are bigger as compared to prokaryotic cell, right. So today what we discussed, we discuss about the difference between unicellular and multicellular, and we discuss about the difference between prokaryotes and eukaryotes. अब अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ अगर क्वेश्चन है, सो उसमें ये आपको 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आता है. और अगर मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है,
सो आप उसकी साइज याद रखो, हाउ इट रिप्रोड्यूसेस याद रखो, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का पॉइंट याद रखो, दिस ऑर्गेनेल्स आर नॉट देयर बट दे आर हियर, ओके। देन सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड लीनियर डीएनए से स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि सेल दिखते कैसे हैं डिफरेंसेस के फॉर्म में। ओके सो इस शान में भी आपको ये डायग्राम है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल समहाउ इट विल लुक लाइक, ओके देखो क्या होता है इसमें। ये एक बैक्टीरियल सेल है जिसमें आउटर कवरिंग है सेल वॉल, उसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन, ये ऑरेंज वाला क्या है सेल वॉल, राइट। ये पर्पल वाला क्या है, ये पूरा अज्यूम करो कि ये ऐसे 3D स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन बराबर। और ये देखो आप देख सकते हैं कि ये से ब्लैक थ्रेड्स दिखाए हैं, तो ये है न्यूक्लियोइड, मतलब डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा है ये डीएनए, सिंगल सर्कुलर लाइक दिस, ओके। अब इसको कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं जिससे लोकोमोशन कर सकते हैं, मींस दे कैन परफॉर्म मूवमेंट, जिस पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैजेला, ओके। अब यहाँ पे आपको और कुछ थ्रेड्स दिख रहे हैं, ऐसे बारीक 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 बहुत सारे थ्रेड्स, ओके। इनको बोलते हैं पिलाए, क्या बोलते हैं पिलाए, एंड सिंगुलर क्या बोलेंगे पिलस। इसका क्या फंक्शन है, इससे बैक्टीरिया किसी सरफेस को अटैच होने के लिए यूज कर सकता है, ओके। पिलाई का फंक्शन क्या है, बैक्टीरिया कैन यूज दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर टू अटैच टू अ पर्टिकुलर सरफेस। एंड समटाइम दो बैक्टीरिया में अगर कोई मटेरियल ट्रांसफर करना है तो भी ये थ्रेड का यूज किया जाता है। जैसे कि आपको बताती हूँ कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरिया है और ये उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और एक दूसरा बैक्टीरिया है उसका ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे से जिससे एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। फिर ये एक बैक्टीरिया उसका जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या है आगे बताती हूँ, ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर करेगा और इसमें भी एक प्लाज्मिड की कॉपी आ जाएगी। पहले ये कॉपी को डबल करेगा ए वाला, और ये बी वाले में क्या कर देगा उसके एक कॉपी को ट्रांसफर कर देगा। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है आपको बताती हूँ। प्लाज्मिड प्लाज्मिड ये ऐसा डीएनए है जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप एक हाथ मेडिसिन लेते हैं किसी डिसीज के लिए जिससे वो डिसीज क्योर नहीं होता है, फिर आप क्या करते हो, आपको लगता है कि अरे डॉक्टर ने अच्छा मेडिसिन नहीं दिया, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये बैक्टीरिया क्या कर लेते हैं, एक हाथ पर्टिकुलर मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया में क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और ये रेजिस्टेंस एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर सकता है, जिससे कभी कभी क्या होता है एक हाथ मेडिसिन एक हाथ डिसीज पे असर नहीं करती है, क्योंकि वो डिसीज उस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है जिसने उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है बराबर। सो ये एक और डीएनए होता है बैक्टीरिया में जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। रेगुलर डीएनए अलग, ओके, और प्लाज्मिड अलग होता है। सो ये एक स्मॉल मैंने कॉन्सेप्ट आपको न्यू बताया बैक्टीरिया के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स हम पढ़ेंगे डिटेल में इन कमिंग टॉपिक। सो इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल in detail. Okay, now this is discussion time student. If you have any doubt you can ask me now on completed topic. If you want me to explain particular topic once again, so you can drop a message in the chat box. If everything is clear to you, you can drop a message, ma'am, yes, no doubt we understood everything,